Hello, class ninth. Today, this is the fourth part of History, Chapter 3 Nazism and Rise of Hitler. Till now, we have discussed how the Weimar Republic came into existence, then, how the Germany was forced to pay 6 billion mark compensation, and what were the effects of the war on Germany, and which type of radical changes came, and how Germany faced economic crisis. And years of depression were so bad for the people living over there that they had no food to eat and they had no jobs. Now today we are going to discuss the topic Hitler's rise to power, how Hitler came into power over there in Germany, and how people started following his ideology that was known as Nazism. And that is why Germany called as Nazi Germany. हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी को नाजी जर्मनी ही कहा जाता है. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. ये जो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए या सोसाइटी में और जो भी चेंजेस आए या इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आए, तो उसके कारण हिटलर का राइज हुआ. He was born in 1889 in Austria. Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front. तो वो बेसिकली एक मैसेंजर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. became a corporal and earned medals for bravery. Corporal means a rank in army and earned medals for bravery. The German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. जर्मन डिफीट से तो वो थोड़ा सा डर गया था, बट वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. ही गॉट वेरी वेरी एंग्री एंड he joined a small group called German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. He renamed the party, and afterwards this party only came to known as Nazi Party. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. So Bavaria was a place, a city. First he took control over there, and afterward he marched to Berlin. Berlin was also a city, Germany, and Berlin is a capital over there. He planned to march to Berlin and capture power. He failed, but इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, and was arrested and tried for treason. उसको अरेस्ट कर लिया and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. Nazis को बहुत ज़्यादा support नहीं मिला 1930 तक. तो it was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. बट 1930 में जो डिप्रेशन रहा, जो मंदी का जो पीरियड रहा, उसमें नाजिज़म एक मास मूवमेंट की तरह से बन गया. एज वी हैव सीन, आफ्टर 29 banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitution. मिडिल क्लास थी जो वो डरी हुई थी, और वो विद डेस्टिट्यूशन मीन्स उनको जो भूखे मरने का डर सता रहा था, वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर. तो यहाँ पे जो नाजी प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा मीन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल, जिसमें कि पीपल की ओपिनियन को चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशल मैसेज उसमें दिया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ पोस्टर्स, फिल्म्स एंड स्पीचेस. तो इस तरह से वो स्पीचेस, बहुत ज़्यादा उसने स्पीचेस दी, पोस्टर यूज़ किए गए, या उनको जो फिल्म उनको दिखाई गई पब्लिक को, तो वो पब्लिक धीरे धीरे वो नाजीज़ के फेवर में हो गई, क्योंकि उनको उसमें उनको लग रहा था कि अगर वो नाजीज़ को सपोर्ट करेंगे, हिटलर को सपोर्ट करेंगे, तो उनका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा. इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर then 2.6% votes in Riksdag. Riksdag was the German parliament. Okay, the German parliament.
but by 1932 it had become the largest party with 37% votes. उसको 1928 में तो उसके वोट्स का परसेंटेज केवल 2.6 था, बट बाद में 1932 मीन्स आफ्टर 4 ईयर उसका जो वोट का परसेंटेज 37% हो गया और नाजी जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी. See here you can see in this picture also, this is a rally. So this was Nuremberg rally. Nuremberg was a city in Germany. So in 1936 rallies like this were held every year. इस तरह की लाखों लोगों को एड्रेस करते हुए रैलीज होती थी. An important aspect of these was the demonstration of Nazi power. इन रैलीज का मेन एम क्या होता था, ताकि नाजी पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, वर्ल्ड को ये बताया जा सके कि कितने ज़्यादा लोग, कितनी पीपल मीन्स मिलियंस ऑफ पीपल वर इन फेवर ऑफ नाजीज. नाजी पावर एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन परेडेड पास्ट हिटलर. तो हिटलर के सामने वो परेड करते हुए निकलते थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस. सोर लॉयल्टी एंड लिसन्ड टू हिज स्पीचेस. तो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वो परेड करते थे, वो अपना लॉयल्टी मीन्स वो हिटलर के लिए लॉयल थे, इस तरह से वो स्वोर मीन्स वो शपथ लेते थे एंड उसकी जो स्पीचेस होती थी वो सुनते थे. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work. तो उसने उसकी जो स्पीचेस जो थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो लोगों को हिला देती थी एक तरह से. और उसकी जो स्पीचेस में एक स्ट्रॉन्ग नेशन का प्रॉमिस होता था. और जो वर्सेल में जो ट्रीटी हुई थी और उसके कारण जो जर्मनी की जो डिग्निटी थी वो जो लूज़ हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, उसको वापस उस डिग्निटी को रीस्टोर करने के लिए वो प्रॉमिस करता था, उनको अश्योर करता था. ठीक है. फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने प्रॉमिस किया एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ. ठीक है, उसके लिए भी प्रॉमिस किया. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ऐसा प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कंट्री को फॉरेन जो इन्फ्लुएंसेस से वो फ्री कराएगा, जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस जर्मनी पे उस समय थी. ठीक है, तो उनको वो फ्री कराएगा और जो जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे जर्मनी के अगेंस्ट, तो उनको वो मुंह तोड़ जवाब देगा इस तरह से. ठीक है. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. हिटलर ने न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक स्टार्ट कर दी थी. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन. स्पेक्टिकल मीन्स तमाशा. Nazis held massive rallies. See here in this image, you can see massive rallies he used to organize. First, let us see what is given here in this box. Notice the sweeping and straight columns of people. See, straight lines हैं people की. Such photographs were intended to show the grandeur and power of Nazi movement. तो ऐसे जो फोटोग्राफ्स थे उनका मेन एम था टू शो ग्रैंडियर एंड पावर ऑफ नाजी मूवमेंट. नाजीज कितने ज़्यादा पावरफुल थे और उनका कितना ज़्यादा ग्रैंडियर था, मीन्स कितना भव्य होता था उनका जो भी रैली थी या जब स्पीचेस होती थी हिटलर की, तो वो दिखाते थे. तो इस तरह की वो रैलीज करते थे और उसके बाद में उसको फ़ोटोज़ को पब्लिश करते थे. Public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banner with the swastik. See this red banner with swastik. Here in this red banner with swastik. So red banner with swastik, the Nazi salute and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle powers. So ये जो रेड बैनर्स होते थे या जो नाजी का जो सल्यूट करने का एक स्पेशल वे होता था और जो
हिटलर की जब स्पीचेस ख़त्म हो जाती थी तो बाद में जब जो अपलॉज होता था, मीन्स जो तालियां बजती थी, वो भी एक स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक स्टाइल में वो बजती थी। तो ये सारा जो सब कुछ था वो बहुत ही यूनिक था, और स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। एक जो पावर का जो एक स्पेक्टिकल था, एक तमाशा जो वहाँ देखने को मिलता था, तो उन सब का ये पार्ट होते थे, ये रेड बैनर्स और नाजी सल्यूट और ये जो अप्लॉज का स्पेसिफिक जो स्टाइल था वो। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। ठीक है, तो नाजी जो थे उन्होंने हिटलर को एक मसीहा के तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, as savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress, कि लोगों को वो डिस्ट्रेस से निकालने के लिए आया है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered. और ये सब जो था वो एक ऐसी सोसाइटी को, जो वो सोसाइटी जिसकी की डिग्निटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और उसका जो भी प्राइड था, उसकी गर्व जो भी था, वो पूरा शटर हो चुका था, मीन्स जो कि पूरा ही ख़त्म हो चुका था, पूरा एक तरह से डिमोलिश हो चुका था। तो उनको ये नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, और हिटलर का जो ये मसीहा वाला जो रूप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा उनको लगता था, क्योंकि जो लोग एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे या वो उसमें रह रहे थे, उनको उसका मसीहा वाला जो रूप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। नाउ दिस नेक्स्ट टॉपिक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, goodbye, take care. If you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you. God bless you.